He is a film superstar. He is a veteran politician. He is the Bihari Babu who has also made record in Asansol. And right now he is playing here in Asansol in the tickets of TMC. So you know who am I talking about. It's Bihari Babu Shatrughan Sinha, who is in Asansol, and he has been campaigning here, and we will talk to him regarding Asansol today and obviously Lok Sabha polls. Sinha ji, thank you for giving us time, busy schedule. This constituency is the hottest constituency in terms of temperature and also in terms of politics. So how are you handling the heat? This is the hottest constituency, even in terms of love and warmth. People are so good over here. It's in true sense, it's a cosmopolitan city. People believe in the harmony, in Sarva Dharma Samabhav. So it's one of the most wonderful cities I'm representing in the whole country. Also responding to what you said, that Bihari Babu has turned into Bengali Babu now, but in true sense, I remain a Hindustani Babu. You know, it's a matter of happiness, pride for some people that I came here for the very first time to represent Asansol on the instructions or the order of one of the most popular, prominent, important, and of course, most powerful leader in the country, Mamata Banerjee, who also happens to be the Iron Lady, which is the call of the day, which is required today. And she asked me to come to Asansol. I came here for the very first time. And the kind of love, affection, and the blessings I got from people over here, and you all know that, rest is history. So, बिहारी बाबू को बंगाली बाबू बनाया, बंगाली बाबू बनाकर आपने साबित कर दिया कि सही मायने में, जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, हिंदुस्तानी बाबू हूँ. देश के किसी कोने में भी आप जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं. ये संविधान की पुकार है. सिन्हा जी, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है. दिस कंस्टिट्यूंसी हैज बीन अ बीजेपी bastion. After left 2014 Babul got, 2019 Babul got, and then when you contested, it was not an easy. It was 2 lakh. But you created a 3 lakh margin in the by-polls. This time you are contesting. क्या लग रहा है कि क्या, obviously you will say you're confident, but you know, क्या लग रहा है to 3 lakhs, and then this time how is the fight? Well, I'm not going to say that I'm confident. I would say that I'm confident of my people, and also the kind of work I've done over here, I've been able to do in Asansol. कि जितने हमारे सामने आए थे, जो फंड हमें मिले आसनसोल के डेवलपमेंट के लिए, या पुराने फंड जिनका आपने जिक्र किया, कलाकार और आज मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, उनका कुछ फंड यूटिलाइज नहीं हुआ था, कुछ करोड़ रुपए, उनका फंड भी मिलाकर यहाँ पे ना सिर्फ काम किया हमने, और जितना हो सका पैसे का हिसाब दिया मैंने, और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि मेरा मानना है ईमानदारी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, सच्चाई और पारदर्शिता का साथ चलना बहुत ज़रूरी है. और इसलिए मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको यहाँ पर खर्च किया, और उसकी बुकलेट बनाकर हमने जनता के सामने रख दिया, प्रेस को दे दिया, जिसकी बहुत सराहना हुई, प्रशंसा हुई. और मुझे लगता है क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं, जो फंड का पैसा मिलता है, वो सही मानों में जनता के लिए सरकार वो देती है कि आप किसी पार्टी के हों, आप उस फंड को खर्च करें जनता के हित में, आप अपने शहर, अपनी सिटी या अपने गांव के विकास के लिए. ये बात दूसरी है, इस फंड का जिक्र किया कि आज ये दुर्भाग्य है कि आज बंगाल का इतना फंड, करीब 1.5-2 लाख करोड़ से ज़्यादा आज केंद्र ने रोका हुआ है, जो कि सही मायने में बंगाल का
क्या डेवलपमेंट का फंड है, मनरेगा का फंड है, यहाँ के आवास योजना का फंड है, ग्रामीण विकास का फंड But they है। are saying you all have not done it properly. There is corruption into it. That's what they have been saying. तो खैर कहेंगे, वो तो उनकी, तो आप जानते हैं वो वैसे लोग हैं। और हमारे दोस्त हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो जब शुरू में आए थे तो अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए। सारी गारंटीज को उन्होंने जुमलों में बदल दिया और अब नई गारंटी लेकर आ रहे हैं। ये मोदी की गारंटी, पहले जितनी गारंटी दी थी, चाहे 15 लाख हर घर में हर इंसान को पहुंचाने का हो, कि आप 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा हो हर साल, ये बहुत सारी बातें हैं। कि जब किसानों की आमदनी डबल कर देने का मामला हो, सबों के लिए मकान बनवाने का मामला हो, महंगाई कम करने का वायदा हो, महिलाओं पे अत्याचार ये रोकने या कम करने का वायदा हो, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ, सारे जुमले हुए। अब उन जुमलों को कवर करने के लिए नए जुमले ला रहे हैं, नई गारंटी दे के नाम पे, और उसी गारंटी के नाम पे, फॉल्स गारंटी के नाम पे, नई गारंटी के नाम पे अब वो ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में ये हुआ। अरे वो हुआ, ये हुआ, वो बात का इशू है। पहले बताओ कि आपने यहाँ फंड क्यों रोका, बंगाल के गरीबों का, बंगाल के डेवलपमेंट का, बंगाल के विकास का फंड क्यों रोका। हमारी यही मांग थी और यही मांग है आज भी कि साडा हक इत्थे रख, हमारा हक हमें दो। ये सवाल आता है यहाँ से। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मोस्ट ऑफ नॉन बंगाली population, and there is Ayodhya Ram Mandir is there. Some people are saying there's going to be a Ram effect, there's going to be a Modi effect. ऐसा कहा जाता है कि नॉन बंगालीज हैज अ बीजेपी माइंडसेट. So do you think that has changed, or don't you think that's a challenge also this time? अगर बंगाल की बात करें तो मैं कहूँगा कि नॉन बंगालीज या बंगाली जो भी हैं हमारे, उनका मैंने कोई और माइंडसेट नहीं देखा है। एक ही माइंडसेट देखा है, दीदी के प्रति लगाव, दीदी के प्रति झुकाव, दीदी के प्रति रुझान। और दीदी की ऐसी पॉपुलैरिटी है बंगाल में या पूरे देश में, मैं नहीं समझता हूँ कि देश में आज किसी नेता का, किसी मुखिया का, किसी नेत्री का ऐसा प्रवाह, ऐसी पकड़, ऐसी जकड़ होगी मासेस पे, लोगों पे, जैसे ममता जी का है। इसीलिए मैंने ममता जी को कहा था शुरू में कि वो ममता जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, पावरफुल हैं, पॉपुलर हैं, टाइग्रेस ऑफ बंगाल हैं। वो सही मायनों में आयरन लेडी हैं, लेकिन ममता मई हैं। कैसे अपने लोगों का ख्याल रख रही हैं, फंड रोकने के बाद भी केंद्र ने रोका हुआ है, लेकिन आम लोगों को उन्होंने इस बात की खबर शायद पूरी तरह नहीं होने दी, उनको इसी तरह संभाल के रख रही हैं। तो आपने कहा कि अगर मंदिर मस्जिद की कोई बात करते हैं, मंदिर मस्जिद सबका व्यक्तिगत आस्था है। मैं तो खुद ही रामायणवासी हूँ, मैं तो खुद ही 4 भाई हूँ, हम लोग 4 भाई हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न। मैं शत्रुघ्न हूँ, हमारे घर का नाम रामायण है। तो ये तो हमारा व्यक्तिगत है ना, ये हमारी आस्था है ना। हम इसके रामायणवासी, इसके लिए ये तो नहीं कहूँगा किसी को कि चूँकि मैं रामायणवासी हूँ इसलिए हमें वोट दें। वो हमारा काम देखेंगे, हमारे काम का अंजाम देखेंगे, काम का परिणाम देखेंगे, वायदे देखेंगे, जुमले देखेंगे कि क्या क्या कहा, क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। उनके आधार पर फिक्स करेंगे ना, मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर, पर्सनैलिटी इन टोटलिटी को जज करते हैं, तभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो ममता जी के बारे में जो कहा जा सकता है, ममता जी ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं। So do you think that with all this thing, Mamata Banerjee, it is often said that opposition lacks a face. There's no face to counter Modi. That's always been said from BJP and from some experts. What do you think, that Mamata is a face which can actually counter Modi nationally? काउंटर तो किया हुआ है जहाँ जहाँ उनका। But she can be the prime minister if India allows. She is quite capable, able, capable, respectable. Why not? अगर हमारे माननीय दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या क्वालिफिकेशन उनकी? कोई ख़ास डिग्री तो नहीं है ना उनके पास। 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद प्रचार के आधार पे, प्रसार के आधार पे, लोगों की पार्टी के आधार पे वो बने। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई ख़ास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती।
आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, मैं भी वजीर आजम बन सकता हूँ, बशर्ते मेरे पास नंबर्स हो, पार्टीज का सपोर्ट हो। उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बने हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड रहे हैं पास्ट में। बहुत लोग ऐसे बने हैं जिनको शायद लोग उतना कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड नहीं मानते हैं। अब रही बात ममता जी के लहर की या ममता जी के पकड़ की, ममता जी ने तो साबित करके दिखा दिया है। आज देश में, पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं, और वो भी इतनी लोकप्रिय, इतनी ममतामयी ममता जी हैं। उनके पीछे इतने बौखला के, इतने घबरा के भारत की सरकार कहें, हमारे माननीय दोस्त कहें, प्रधानमंत्री जी कहें, या हमारे बाकी रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स कहें, ये लोग इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं या कई बार अपमान तक चले जाते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात हम करते हैं, वो महिला का अपमान करते हैं। पिछली बार वो दीदी 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 कितना मजाक उड़ाया था, बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार भी आप इतना अटैक करें तो दो बात साबित होती है। एक तो ये कि वाकई दीदी बहुत पावरफुल है, बहुत पॉपुलर है, तभी तो सब इनके पीछे पड़े हुए हैं। और बी ये है कि आप इनका जितना अपमान करेंगे, किसी खास जगह के लिए आप जिम्मेदारी डाल देते हैं मुख्यमंत्री पे, ममता जी पे। मैं संदेश खाली का जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ की वहाँ Well, that's a weapon for BJP, definitely. They're saying what has happened in Sandesh Khali is terror. Yes, so I'm coming to that only. It's a matter of shame, they say. Our Honorable Prime Minister said this is a matter of shame. ठीक है, आप एक औरत के बारे में, वो महिला मुख्यमंत्री हैं, इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, इनके बारे में आप कह रहे हैं शेम। और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके सामने क्या क्या घटनाएं नहीं घटी। अभी अगर लेटेस्ट चलें तो आपके यहाँ पे कर्नाटका में आपका अलायंस का पार्टनर, आपका अपना सपोर्टेड कैंडिडेट शायद वर्ल्ड के बिगेस्ट स्कैंडल में इन्वॉल्व पाया गया आज के दिन। इसके पहले आपके कठुआ में हुआ, उस पर शेम नहीं आई आप लोगों को। उसके पहले हाथरस में मामला हुआ, वहाँ पे शेम नहीं आई। मणिपुर जल रहा है, और मणिपुर में क्या क्या जघन्य अपराध नहीं हुए औरतों के प्रति, औरतों के खिलाफ, उस पर आपको शर्म नहीं आई। आपको सारों में से, हालांकि हाउ कितना भी हो, मैं कहूँगा निंदनीय, शर्मनाक है अगर बात सच है तो, क्योंकि मामला कोर्ट में, इसलिए हमने कहा कि बात अगर सच है तो। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये संदेश खाली की बात जो है, वहाँ पे एक्शन लिया गया, देर से लिया गया हो सकता है, लेकिन देर से भी लिया गया हो तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि कोर्ट के ऑर्डर और सीबीआई के द्वारा जो रिएक्शन हुआ, उसके कंफ्यूजन की वजह से देर हो सकती है। लेकिन उसके बदले में ऐसा कहेंगे कि मैडम के ऊपर, दीदी के ऊपर शेम। रिमेंबर कि ये दीदी जो है सिर्फ बंगाल की दीदी नहीं है, आज ममता बनर्जी जगत दीदी है, पूरे देश की दीदी है वो। This question तो इस अपमान का बदला इस बार भी बंगाल की जनता, देश की जनता, आसनसोल की जनता भरपूर तरीके से लेगी हमारे रूलिंग पार्टी के खिलाफ। Amit Shah has told CNN News 18 that this time in Bengal, 30 is the minimum number which they'll get. They are very confident about Bengal. Well, I don't want to say much against our friend or our Home Minister, Honorable Amit Shah ji. लेकिन अगर if you go by the track record, अमित शाह जी कुछ भी कह जाते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के लोग उनको चाणक्य मानते हैं, आज का चाणक्य, जैसे पूरे देश के लोग शरद पवार को चाणक्य मानते हैं। उसके बाद अगर किसी को थोड़ा बहुत चाणक्य मानते हैं तो उनकी पार्टी के लोग अमित शाह को मानते हैं। उन्होंने दिल्ली में कहा था कि 2/3 मेजोरिटी से हम जीतेंगे केजरीवाल के खिलाफ। तो 2/3 से तो नहीं जीत सके, 2-3 सीटें जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी, हमारे दोस्त जो हैं, स्कूटर पार्टी में बदल गए थे केजरीवाल के सामने। उसके बाद उन्होंने बिहार में क्या कहा था, 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे। वहाँ पे नीतीश कुमार उस वक्त और लालू यादव जी की टीम ने उनके परखच्चे उड़ा दिए। अभी हाल में ही कहा था कि बहुत दूर ना जाएं, तो पिछली बार बंगाल में क्या नारा दिया था, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार कहा था। तो उस तरह से उनके जो आगे बड़ी मुश्किल से
75-76 सीटों पे आए। अभी कर्नाटका में क्या कहा था, कर्नाटका में कि हम 200 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, 66 सीट पे आ गया, 66। तो मेरा ख्याल है जिस तरह से कहते हैं अपने मोराल वर्कर्स का, कार्डर का मोराल बूस्ट करने के लिए कहते हैं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए और लोग लेते भी नहीं हैं। वो अपनी अच्छी नीयत से कहते हैं मगर उनकी नीयत को लोग समझ जाता है कि ये पॉलिटिकल जुमलेबाजी है और इसीलिए कहते हैं जब वो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं इस बार, अभी तक तो 50% पे भी नहीं पहुंचे हैं। But then he is कंप्लीट को 50% पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो 400 का नारा दे रहे हैं अगर वो इस बार, अब की बार 400 पार, तो उस हिसाब से तो उस एवरेज के हिसाब से तो बड़ी मुश्किल से इनको 150 या 250 सीट आनी चाहिए। 200 तो टच करेंगे नहीं 50%। But coming to this statement of yours, he has also said to News 18 that already in first two phases they have crossed 100 seats. 100 सीट आ गया है पहले दो चरण में। आपका क्या कहना है? इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो क्या तो ईवीएम पे उनकी अच्छी ईवीएम मशीन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, तभी तो इतने दावे से कह रहे हैं कि हम 100 सीटों से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। क्या तो ईवीएम खोलने का कोई तरीका हो उनके पास? Saying that the EVM malfunction कुछ हो रहा है। हो एक वजह तो ये हो सकती है और दूसरी वजह है उनकी डिस्परेशन, क्योंकि इसके पहले ऑपोजिशन ने कहा था कि इनके होश हो चुके हैं 2 फेजेज में, तो शायद इनके पास और कोई चारा नहीं रह गया और कहना पड़ा इनको कि इस बार हम 100 क्रॉस कर चुके हैं। ये तो अभी आने वाला वक्त में सब पता चल जाएगा 4 जून। Coming to Asansol, there is a dearth of industry here, which was known as one of the industry capital. There is a water crisis. How will you solve that? This is an ever, and obviously corruption, cut money, all those things are also there. And your party in some places are, people allege that they take money. आप तो बहुत समझदार पढ़ी लिखी लेनी है और आपको तो ज़्यादा पता होगा। अभी कर्नाटका का इलेक्शन हुआ था, 40% कट मनी वहाँ आपने सुना था। बिल्डर्स लोगों ने, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिल्डर्स लोगों ने लिख के प्रधानमंत्री को एक बार नहीं कई बार भेजा था। चारों तरफ बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ था कि कोई आपका टेंडर या कोई चीज़ पास होने से पहले 40% उसका कट कमीशन देना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन के लिए कोई अभी ना चले। और अकेले मैं सॉर्ट आउट करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी टीम के साथ सॉर्ट आउट करूँगा। अच्छा। मैं कोशिश करूँगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी जो बातें हैं, जो शिकायतें हैं, उसकी जांच करके जो जेन्युइन मामला है, और लोगों को मेरा पता है, मैं फॉर्चुनेटली वन ऑफ द फ्यू फॉर्चुनेट वंस इन द कंट्री जिसके ऊपर आज तक कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आरोप नहीं है, ना कोई भ्रष्टाचार का, ना कोई और तरह का। तो अगर मुझ जैसा आदमी जब कह रहा है कि मैं इस बात की प्रायोरिटी दूंगा, इस बात को, अभी तो मैं आए हुए 2.5 साल 3 साल ही हुए हैं ना, अभी आऊँगा तो अपनी टीम के साथ, ममता जी के साथ, यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, लोगों के साथ हम ये करेंगे, मिलकर बातचीत करेंगे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बंगाल का या हमारी सरकार का नाम खराब ना हो, नाम रोशन हो और हम अपने बंगाल को राइट दिशा में, राइट डायरेक्शन में लेके चल सकें, गौरवान्वित करें अपने बंगाल को और अपने देश को। Another question comes up, your opponent is SS Ahluwalia, and what are you saying to your opposition? आप opposition को खामोश किस तरफ कर रहे हैं? नहीं, आहलूवालिया जी को तो मैं एक अच्छे आदमी के रूप में जानता हूँ। ही इज़ अ नाइस पर्सन, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स एंड ही इज़ नाइस पर्सन। अच्छा है, बढ़िया है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, ये लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वो आए हैं तो ऑपोजिशन को खामोश तो आपको करना है, वो तो बहुत सब कुछ बोलेगा, तो वैसे कैसे आप खामोश? मैं करने वाला कौन हूँ? हमारा काम देखकर, हमारा नाम देखकर, हमारे साथ साथ जो चलने की प्रक्रिया रही है आसनसोल की जनता जनार्दन का, चाहे उन्होंने हमें जो लीड किया है सही डायरेक्शन में, भले न्यू डायरेक्शन में आया हूँ, लेकर चले हैं, तो मैं समझता हूँ इस चुनाव में आसनसोल की जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आशीर्वाद इतना झन्नाटेदार होगा, इतना धमाकेदार होगा, पुराने रिकॉर्ड्स को मेरे तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकेगा। ये मेरी उम्मीद भी है, कामना भी है, शुभकामना भी है, मनोकामना भी है और प्रार्थना भी है। और ये प्रार्थना रंग लाएगी
और सामने वाले को ऑटोमेटिकली कर देगी खामोश। क्या आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं फॉर द आसनसोल ऑडियंस, कोई ऐसा डायलॉग जो इस टाइम में उन लोगों के लिए या फिर जनता के लिए आप बोलना चाहेंगे, वो आप बोल सकते, एनी डायलॉग विच यू वांट दैट विच इज एप्ट नाउ? मैं कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, और ख़ासकर आज जिस तरह से लोग दीदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ममता जी के ऊपर, हमारी तृणमूल कांग्रेस के सरकार के ऊपर, जिस तरह से सारे लोग मिलकर एकदम अपनी बातों को छुपाते हुए, अपने जुमलों को आगे बढ़ाते हुए, अपनी पुरानी गारंटी को नहीं फिल करते हुए नई गारंटी को सामने ला रहे हैं, मोदी की गारंटी बनाकर, सारे झूठ के बेस पे आकर वो लोग आज खड़े होकर जिस तरह से कर रहे हैं ममता जी को। तो मैं अपनी जनता को, और ख़ासकर आसनसोल की जनता, जनार्दन को, बंगाल के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस ज़माने में रहना है तो कोहराम मचा दो। This was Shatrughan Sinha in his own way. He is actually so confident that he is saying that this time too, he is going to create a record in Asansol.